So we'll work in the category of semi-groups. Category of semi-groups. Category is actually it's a quadruple. Usually इसको C से denote करते हैं. It's consisting of four things. One is the O, second is the home, and third is the I, which we call the identity, and fourth is that's actually the operation. It's called the composition. तो कैटेगरी में ये चार चीज़ें होती है. This O, it's called the collection. The members of this O are called the objects. Okay, members of O are called objects. ठीक है. O is a set actually. It's a collection of it's certain collection. It may be collection of sets. It may be anything. But then we have home. What's home? If we choose any two objects from this collection O, say A and B, we define home of AB. Okay. So home of AB, it is if suppose any member F is in this home, then we say that this F is a morphism actually. F is a morphism from A to B. In general, this F is not a function. तो इसकी examples भी आपको मिलेगी आगे lectures में. So what's home actually? First we select two objects from this collection O. Then home of AB means the set of all morphisms between the objects A and B. Then we have identity. What's identity actually? For any object A, which is in this class, object class O, we define IA. It's a morphism from A to A. तो इस बात का आपको ख्याल रखिए कि यहाँ हमारी जो कैटेगरी है सेमी ग्रुप्स की, यहाँ पर मॉर्फिज्म्स वही है जो आपके पास है सेमी ग्रुप मॉर्फिज्म्स, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. ये फंक्शन है इस केस में, हमारी केस में IA is the identity function from the object A to this object A itself. और हमारे केस में जो ऑब्जेक्ट O है ना, it's a collection of objects. So this is consisting of the semi groups actually. O में semi groups होगी. O is a collection of semi groups here. So our objects are yet semi groups in our category. So in our category, the objects are semi groups. That means O is consisting of semi groups. And home means if we choose any two semi groups A and B, home of AB means the set of all morphisms between the semi groups A and B. And IA is the identity morphism on the semi group E. Okay. Then we have this composition. What's the composition actually? Role of composition. This if we have say we have three objects A, B, C in the object class O, then we have morphism F from A to B, and we have morphism G from B to C, and we define the morphism that we call the composition of these two morphisms F dot G. It's from A to C. So I will always define FG. I will apply the composition from the right. So FG means if you want to evaluate FG means you first evaluate f of x, then you evaluate g of f of x. So I will always write element on the left hand side of the map. So you should keep this thing in mind. Okay. So FG means you don't evaluate FG of x like this. So, अगर आपको FG का वैल्यू निकालना होगा x पर, आप x को राइट लेफ्ट साइड में लिखोगे. So x FG, you first apply f then apply g. So FG means you first apply f then g. इसका आपको ख्याल रखना है. तो जो भी मॉर्फिज्म्स आप लोगे, अगर आपके पास तीन ऑब्जेक्ट्स हो गए, यू डिफाइन मॉर्फिज्म फ्रॉम A to B and
B to C, you have two morphisms, then you can define the morphism f dot g from A to C. It's just the composition, or we call it a composition of these two morphisms. And this composition has the following properties. It is associative. Associative means if you choose any three morphisms, F, G and H, F from A to B, G from B to C, then H from C to D. Suppose you have these three morphisms, then this holds. F dot G H is equal to F dot G dot H. That's, this composition is actually associative. और इस कंपोजिशन की और एक प्रॉपर्टी है, आपके पास मॉर्फिज्म है F from A to A, A to B, then you have identity morphism IA from A to A, and you have an identity morphism IB from B to B. आपके पास ये दो आइडेंटिटी मॉर्फिज्म्स है. We have a following this identity has the following property. So F A to B, A to A, you first apply this A to A, then A to B, means you have to write this composition IAF. IAF means you first apply IA is A to A, that F is from A to B. That means this composition is from A to B. It should be equal to F, and this F should be equal to FIB. So F is the morphism from A to B, then IB is a morphism from B to B. This composition is well defined. Okay, so this composition is well defined, and it must have this property. IA composition F should be equal to F, and it should be equal to FIB. And in our case, in the category of semi-groupers, this is always true. So it's a well defined actually. अगर आप लोगे ना collapse of semi-groupers, तो सबसे पहले एग्जाम्पल जो एक्चुअली है, मतलब जो नेचुरल एग्जाम्पल इसकी है, हम लेते हैं कैटेगरी ऑफ सेट्स एक्चुअली. दैट्स वेरी नेचुरल एग्जाम्पल, कैटेगरी ऑफ सेट्स. सो कैटेगरी ऑफ सेट्स में क्या होता है, इट्स आल्सो द इट्स आल्सो क्वाड्रुपल. इट्स कंसिस्टिंग ऑफ होम, identity and the composition. Here composition is the composition of mappings, and this O is the collection of all sets. जब मैं कैटेगरी ऑफ सेट्स की बात करूंगा, उस केस में जो ऑब्जेक्ट क्लास होगा, इट्स कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सेट्स. It's consisting of all sets. And what's home? If you choose any two sets A and B, because we are in the category of sets, that means the objects are sets here. Okay, so I choose any two sets A and B, then we have home from A to B. So if F is in the home, it means that this F is a mapping from A to B. So here morphisms are just mappings between the objects, because objects are just sets, they are not structured sets, so we don't need to preserve anything here. So they are just sets, so here morphism are just functions. Okay, so F is in home of AB, that means F is a morphism between the objects A and B. Objects are sets, so here the morphism are the functions between the sets. And then we have a composition of mappings also. We have also identity functions here. Identity function, if I define IA from A to A by XIA equal to X for all X in A, then this is obviously a function from A to A. Therefore IA is a morphism. Okay, so आइडेंटिटी हर किसी ऑब्जेक्ट के लिए आपके पास इस टाइप की मॉर्फिज्म है आपके पास. और आपके पास कंपोजिशन भी इस केस में है. अगर आप दो फंक्शंस लोगे, F फ्रॉम A टू B, G फ्रॉम B टू C, then FG is also a function from A to C. So it's also in this home class of A to C. तो मसला ये है कि अगर आप दो मॉर्फिज्म्स लोगे, इनका जो कंपोजिशन है ना, वो भी मॉर्फिज्म होनी चाहिए. और यहाँ पर मॉर्फिज्म क्या है, यहाँ पर मॉर्फिज्म फंक्शंस है. सो इन अदर वर्ड्स, अगर आप दो फंक्शंस लोगे, इनका कंपोजिशन अगर डिफाइन होगा, तो वो भी एक फंक्शन ही होनी चाहिए हमारे केस में. और वो ट्रू है, because whenever F is a function from A to B, G is a function from B to C, then their composition FG is a function from A to C. और ये जो कंपोजिशन है ना,
जहाँ ये जो यहाँ पर आप डिफाइन कर रहे हैं कंपोजिशन ऑफ, इट इज़ आल्सो एसोसिएटिव, ये आपने ऑलरेडी किया है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस ऑलवेज एन एसोसिएटिव ऑपरेशन, and this IA acts as an identity. This is also true in our case. So we have a category of sets because it has all these properties. If I choose objects as a class of all sets, if I choose home as a class of all functions between the objects, if I choose I, the identity function on any object, if I choose this dot as the composition of function, then this quadrupole forms a category because it has all these properties. इसी तरह से अगर आप कैटेगरी ऑफ सेमी ग्रुप्स में जाओगे वहां पर क्या होगा, कैटेगरी ऑफ सेमी ग्रुप्स में कैटेगरी ऑफ सेमी ग्रुप्स में क्या होगा, वहां पर भी आपके पास एक क्वाड्रपल होगा, वहां पर भी आपके पास चार चीजें होगी, क्यू होगा, होम होगा, आई होगा और कंपोजिशन होगा। और O इस केस में क्या होगा, O is the collection of all semi groups here. So in this case O is the collection of all semi groups. O is the collection of all semi groups. Collection of all semi groups. और home क्या होगा, if we choose any two objects from this O, means if we choose any two semi groups, because O is collection of all semi groups, then this F from A to B means it's a semigroup morphism between the semigroups A and B. And IA, अगर आप इसमें आइडेंटिटी देखना क्या IA मॉर्फिज्म है, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए IA ऐसे डिफाइन करोगे, I of X is equal to X for all X in A, then obviously this is a morphism. It satisfies the properties of morphism. जो semigroup morphism है ना, semigroup homomorphism. Semigroup homomorphism का मतलब क्या है, जो प्रोडक्ट को प्रिजर्व करिए। तो अगर आपके पास दो सेमी ग्रुप्स है एस और टी, अगर आपके पास दो सेमी ग्रुप्स है तो मैं कहूँगा एफ जो है ना, इट्स अ मॉर्फिज्म बिटवीन द सेमी ग्रुप्स एफ एस एंड टी इफ ए बी ऑफ एफ इज इक्वल टू ए एफ बी एफ। तो ये है डेफिनेशन ऑफ सेमी ग्रुप मॉर्फिज्म। तो यहाँ पर मॉर्फिज्म है, यही सेमी ग्रुप मॉर्फिज्म। आपके पास दो सेमी ग्रुप ए एंड बी है, एफ इनके दरमियान मॉर्फिज्म है। तो होम ऑफ ए कमा बी मीन्स द सेट ऑफ ऑल मॉर्फिज्म्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी। और आई ए जो आपने डिफाइन किया, आई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, जो आपने आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइन किया, ये मॉर्फिज्म है, तो हम इसको इसमें ले सकते हो। और इसकी वो प्रॉपर्टी भी है, अगर आप एफ के साथ इसको कंपोज करना चाहोगे तो अगर आप आई एफ लिखना, आई कंपोजिशन एफ इट्स इक्वल टू एफ। Composition is just the composition of mappings because here morphism they are first functions. So here the composition is the composition of mappings in this case. और वो जो composition है वो associative भी है और इसकी ये property भी है. So this category of semigroups is, we have a category of semigroups because it has all these properties. इसी तरह से अगर आप कैटेगरी ऑफ ग्रुप्स की बात करोगे, वहाँ पर ऑब्जेक्ट्स जो होंगे ना, एक्चुअली जब आप कैटेगरी चेंज करोगे ना, ऑब्जेक्ट्स चेंज होंगे। जब आप कैटेगरी ऑफ सेट्स लोगे तो ऑब्जेक्ट्स आपके पास सेट्स होंगे, आप कैटेगरी ऑफ सेमी ग्रुप्स लोगे उस केस में ऑब्जेक्ट्स सेमी ग्रुप्स होंगे, और अगर आप कैटेगरी ऑफ ग्रुप्स लोगे उस केस में ऑब्जेक्ट क्या होंगे, यस, इस केस में ऑब्जेक्ट ग्रुप्स होंगे और मॉर्फिज्म्स क्या होगी, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। और आइडेंटिटी मैप इज ऑलवेज अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, तो वो भी आपके पास है। और कंपोजिशन ऑफ मैपिंग इज एन एसोसिएटिव। इसी तरह से जब आप कैटेगरी ऑफ से वेक्टर स्पेसेस लोगे, वहां पर ऑब्जेक्ट्स वेक्टर स्पेस होगी और वहां पर जो मॉर्फिज्म्स होगी वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस होगी बिटवीन द वेक्टर स्पेसेस। मतलब ये नेचुरल है, जो आप जिनके साथ आप डील करते आए हो, ये वही एक्चुअली है, ठीक है। अब कैटेगरी ऑफ सेमी ग्रुप्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हम मेनली डिस्कस करेंगे throughout this course. Okay, why it's so important, why we need to study this category of semigroups. आपने ग्रुप्स में जब हम ग्रुप्स की बात जब हम करते हैं, ग्रुप्स, वहाँ पर यूजुअली जब आप मॉर्फिज्म डिफाइन करोगे बिटवीन द ग्रुप्स जी एंड एच, हम कहते हैं ये एफ इपीमॉर्फिज्म है इफ एफ इज ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। अगर एफ होगी क्या, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, ऑन टू
होमोमॉर्फिज्म इसका मतलब है कि हम ये भी कहते हैं कि एफ इज एपीमॉर्फिज्म। एफ इज, ये आपने सुना है कभी? जी सर। तो एक्चुअली ग्रुप्स में क्या है, ग्रुप्स में एपीमॉर्फिज्म और ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, या ऑन टू की जगह पर आप सर्जेक्टिव भी कह सकते हो, यू कैन आल्सो से सर्जेक्टिव, वी यूज द वर्ड सर्जेक्टिव, ऑन टू और सर्जेक्टिव, ऑन टू और सर्जेक्टिव इट्स सेम एज एपीमॉर्फिज्म इन केस ऑफ ग्रुप्स। और ये जो और आप एक्चुअली ऑन टू को ही मानते हो एपीमॉर्फिज्म ग्रुप्स में, और मगर वो ट्रू नहीं है। एपीमॉर्फिज्म की अपनी एक डेफिनेशन, इट्स एक्चुअली एक कैटेगोरिकल डेफिनेशन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन अलग से है, और वो डेफिनेशन जब हम देखते हैं, जब हम कैटेगरी ऑफ ग्रुप्स में जाते हैं, दैट डेफिनेशन इज इक्विवेलेंट टू द सर्जेक्टिव मॉर्फिज्म। सो दैट्स वाई अगर आपके पास ग्रुप्स में एपीमॉर्फिज्म और सर्जेक्टिव ये सेम है, आप किसी टाइम एपीमॉर्फिज्म में लिखते हो और किसी टाइम आप सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म में लिखते हो, बिकॉज दे आर वन एंड द सेम थिंग्स एक्चुअली। और इसका प्रूफ भी है, अच्छा प्रूफ है इसका, अच्छा खासा प्रूफ, आसान नहीं है, ठीक ठाक प्रूफ है। सो एक्चुअली दिस एपी इज ऑलवेज सर्जेक्टिव, एपीमॉर्फिज्म इज ऑलवेज सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म इन द कैटेगरी ऑफ ग्रुप्स। एपीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, वो क्या है असल में। वो डेफिनेशन नहीं है जो आपने एक्चुअली ग्रुप्स में पढ़ी है, जो आपने ग्रुप्स में होमोमॉर्फिज्म जब डिस्कस किया, वहाँ पर जो एपीमॉर्फिज्म आपने बताया ये एपीमॉर्फिज्म है, वो एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है एपीमॉर्फिज्म की। एपीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन कुछ और है, बट इन द कैटेगरी ऑफ ग्रुप्स ये इक्विवेलेंट है। सर्जेक्टिव और एपीमॉर्फिज्म दे आर वन एंड द सेम थिंग्स। एपीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या है? एपीमॉर्फिज्म, और शॉर्ट में हम इसको एपी कहते हैं। एपी तो कैटेगरी ऑफ सेमी ग्रुप्स में हम इसको डिफाइन करेंगे। हम इसको जनरल कैटेगरी में भी डिफाइन कर सकते हैं, बट वी आर मेनली फोकस, और मेन फोकस विल बी ऑन कैटेगरी ऑफ सेमी ग्रुप्स। अगर आपके पास, अब यहाँ से आप लेक्चर नोट स्टार्ट कर सकते हो अपने। लेट अल्फा, let S and T be semigroups, S and T be semigroups. Semigroups आपको पता है किसको कहते हैं? Yes? Do you know semigroup? Yes sir. It's the associative, binary. The binary operation is associative only. So you have two semigroups S and T, and let alpha from S to T be a morphism. भी मॉर्फिज्म, ये कोई मॉर्फिज्म है। मॉर्फिज्म आपको पता है, होमोमॉर्फिज्म जिसको हम कहते हैं, और कैटेगरी में यूजुअली यूज करते हैं मॉर्फिज्म को, होमोमॉर्फिज्म को नहीं है। तो जैसे आपके पास वेक्टर स्पेस में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, बट अगर हम वेक्टर स्पेस की कैटेगरी तस्वुर में लेंगे तो वहाँ पर भी हम मॉर्फिज्म का ही यूज करेंगे। तो मॉर्फिज्म मीन्स वहाँ पर वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अल्फा मॉर्फिज्म है बिटवीन द सेमी ग्रुप्स एस एंड टी। देन दिस अल्फा, then alpha is said to be an epimorphism, said to be an epimorphism if for any semigroup W and any two morphisms beta gamma from the semigroup T to this W, T तो ऑलरेडी आपने चूज किया है, such that alpha beta is well defined, because alpha beta means you have to first apply alpha then beta. So alpha is a map from S to T, beta is a map from T to W. Okay, alpha beta is a map from S to W. Okay, this is equal to such that alpha beta equal to alpha gamma. ये अगर equal हो गया, this should imply beta equal to gamma. मतलब
अल्फा को हम इपी कहेंगे तभी अगर अल्फा क्या होगी, लेफ्ट कैंसिलिटी, अगर को अल्फा को कैंसिल कर सके। कैंसिल मीन्स अगर अल्फा बीटा अल्फा गामा के बराबर होगा, इट शुड इम्प्लाई बीटा इक्वल टू गामा। अगर इसने ऐसा किया, इस अल्फा की ये प्रॉपर्टी अगर होगी, तो हम कहेंगे अल्फा इपीमॉर्फिज्म है। तो इट्स नॉट एक्चुअली ऑन्टो इन जनरल कैटेगरी। तो इपीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन ये है। और फॉर्चुनेटली ग्रुप्स की कैटेगरी में जब हम देखेंगे तो वहाँ पर अगर आप अल्फा को मानोगे इपी, मतलब अल्फा की ये डेफिनेशन मानोगे आप दो ग्रुप्स लोगे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ग्रुप्स की कैटेगरी है, ऑब्जेक्ट्स आपको ग्रुप्स लेने हैं, ठीक है। आपने लेनी है मॉर्फिज्म अल्फा बिटवीन द ग्रुप्स एस एंड टी। फिर आपको कोई भी दो मॉर्फिज्म आप लोगे बिटवीन द ग्रुप्स टी एंड डब्ल्यू, सच दैट अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा गामा इम्प्लाई बीटा इक्वल टू गामा। तो अगर आप मानोगे कि अल्फा की ये प्रॉपर्टी इन द कैटेगरी ऑफ ग्रुप्स, यू विल सी दैट दिस अल्फा इज देन सर्जेक्टिव। So that means in groups every EP is actually surjective in the category of groups. In the category of groups every EP is surjective. मतलब EP की डेफिनेशन ये है, या इसका ख्याल रखिए, EP is not actually surjective। ये आपको दिमाग से पहले बाहर निकालना है। EP is not surjective। EP की डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन ये है जो मैंने यहाँ पर लिख दी है। आपको समझ आ रहा है? सर इसका रिपीट कीजिए। देखिए हम कैटेगरी ऑफ सेमी ग्रुप्स में है, ठीक है। यहाँ तक कैटेगरी ऑफ सेमी ग्रुप्स मीन्स आपको जो भी ऑब्जेक्ट्स लेने हैं वो आपको सेमी ग्रुप्स लेने हैं। इतना क्लियर है? यस। इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? आप ऑब्जेक्ट्स में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? मतलब ये डेफिनेशन है, ये कैटेगरी की डेफिनेशन है। इसमें चार चीज़ें होती है। एक तो होता है ऑब्जेक्ट क्लास, जिसमें वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आप किस कैटेगरी में हो वही ऑब्जेक्ट्स होगी। अगर आप कैटेगरी ऑफ सेमी ग्रुप्स में हो तो आप जो ऑब्जेक्ट्स लोगे यहाँ पर वो क्या लोगे, सेमी ग्रुप्स। तो आपने दो सेमी ग्रुप्स लिए यहाँ पर, एस और टी, और आपके पास एक मॉर्फिज्म है अल्फा बिटवीन द सेमी ग्रुप्स एस एंड टी। ये अल्फा कब ईपी होगी? अल्फा कब ईपी होगी? अल्फा तभी ईपी होगी अगर आप कोई भी सेमी ग्रुप लोगे डब्ल्यू, क्योंकि आपके कैटेगरी आप सेमी ग्रुप्स में हो। आपको ऑब्जेक्ट सिर्फ सेमी ग्रुप्स लेने हैं, आपको सेमी ग्रुप्स के बाहर नहीं जाना है, इसका आपको ख्याल रखना है। आप कोई भी सेमी ग्रुप डब्ल्यू लो और कोई भी दो मॉर्फिज्म्स आप लो, बीटा गामा फ्रॉम टी टू डब्ल्यू, फ्रॉम टी टू डब्ल्यू, सच दैट अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा गामा। ये कंपोजिशन क्या होना चाहिए, सी। आपको ऐसी दो मॉर्फिज्म्स लेनी है, बीटा गामा, विद द प्रॉपर्टी दैट दिस कंपोजिशन इज सी, और ये कंपोजिशन आपको सेम लेना। अगर ये कंपोजिशन सेम है, अगर फिर इसने इंप्लाई किया, अगर यहां से आपको ये कंक्लूजन निकला कि बीटा गामा के बराबर है, मतलब ये आपको एजम्पशन ही लेनी है कि अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा गामा, ठीक है। और वहां से अगर आपको ये कंक्लूजन निकला कि बीटा गामा के बराबर है, तब आप कह सकते हो कि अल्फा जो है ये इपीमॉर्फिज्म है। और इसको एक्चुअली कुछ बुक्स इसमें ये भी यूज करते हैं, ये टर्म भी, लेफ्ट कैंसिलेटिव। अगर अल्फा लेफ्ट कैंसिलेटिव होगा देन इट्स इपीमॉर्फिज्म, क्योंकि यहाँ से एक्चुअली आप देख सकते हो कि आप एक्चुअली अल्फा को कैंसिल करते हो और अल्फा लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट कैंसिलेटिव। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इपीमॉर्फिज्म। अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो डायग्राम्स, यूजुअली हम यहाँ पर ज़्यादा डायग्राम्स का यूज़ करेंगे। और हम क्यों कंपोजिशन ऐसे ले रहे, हम क्यों कंपोजिशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ले रहे हैं, इसका एक रीज़न है। तो वो भी आपको आगे समझ आ जाएगा। वाई वी आर टेकिंग कंपोजिशन लाइक एफ जी, वाई वी एफ जी मीन्स दैट एफ फर्स्ट देन जी। तो यूजुअली आप कंपोजिशन यहाँ से लेते हो ना, जो आपने अब तक जो किया है आपने, आप एफ जी एफ एक्स ऐसे लिखते हो, पहले आप जी को इवालुएट करते हो फिर आप एफ को करते हो। मगर हमारा इसमें जो आप करोगे ना, इसमें पहले आप एफ अप्लाई करोगे देन यू अप्लाई जी। और इसका रीज़न है कि वो आप आगे हम वो आपको बता देंगे वो रीज़न क्या है। तो अल्फा है मॉर्फिज्म बिटवीन द सेमी ग्रुप्स एस एंड टी, ओके। देन दिस अल्फा इज आपको दो मॉर्फिज्म्स लेनी है, टी से लेकर डब्ल्यू तक, टी से लेकर डब्ल्यू तक, ठीक है। टी से लेकर डब्ल्यू, सॉरी ये डब्ल्यू एक्चुअली एक ही है,
टी से लेकर डब्ल्यू तक आपको दो मॉर्फिज्म्स लेनी है। तो ये एरो मीन्स दिस इज फ्रॉम एस टू टी, दिस इज फ्रॉम टी टू डब्ल्यू। आपको दो मॉर्फिज्म लेनी है such that this alpha beta is same as alpha gamma. Okay, this is alpha beta. Actually alpha beta is the composition of alpha and beta. It is equal to alpha gamma. It is from S to W. ये composition सेम होना चाहिए। और अगर इसने इम्प्लाई किया कि ये जो बीटा है ना, बीटा इक्वल टू गामा, दिस शुड इम्प्लाई बीटा इक्वल टू गामा फॉर इपीमॉर्फिज्म। अगर आपको चाहिए कि अल्फा पी होनी चाहिए, इसके लिए ये बीटा फिर गामा के बराबर आना चाहिए। और ग्रुप्स की कैटेगरी में दिस ऑलवेज इम्प्लाइज सर्जेक्टिव। अगर अल्फा की ये प्रॉपर्टी अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा गामा इम्प्लाइज बीटा इक्वल टू गामा, देन अल्फा इज ऑलवेज अ सर्जेक्टिव। इसका प्रूफ है वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। और दैट्स व्हाई दिस ग्रुप्स कैटेगरी ऑफ ग्रुप्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट। एक्चुअली कैटेगरी ऑफ ग्रुप्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, is not important. So groups is a nice category. It's a nice it has a nice structure, it has inverse, it has identity, but in this sense of epimorphism, so it is not interesting actually, because their epimorphism and surjectomorphisms, they are always same. And one thing you should note that every surjectomorphism is always epimorphism. जो भी surjective मैप आप लोगे ना, वो हमेशा epimorph, every surjective morphism is an epimorphism. वो क्या होगी? But converse is not true. But converse is not true. जो भी सर्जेक्टिव मॉर्फिज्म आप लोगे वो हमेशा एपीमॉर्फिज्म होगी, मगर कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स ट्रू है कुछ कैटेगरीज में, जैसे ग्रुप्स की कैटेगरी में सर्जेक्टिव और एपीमॉर्फिज्म दे आर इक्विवेलेंट। और सेमी ग्रुप्स की कैटेगरी में ये दोनों चीजें इक्वल नहीं है। सर्जेक्टिव इंप्लाई करेगी वहां पर भी ईपी, it is always true, it is in any category. Surjective morphism always implies epimorphism, but converse is not true in gender as in the category of semi groups. Converse is not true. तो अब important क्या है, क्यों हम semi groups को स्टडी करते हैं इस सेंस में, epimorphism की सेंस में? Why we are studying these the category of semi groups? कैटेगरी ऑफ सेमी ग्रुप इसलिए हम पढ़ते हैं, क्योंकि इसलिए हम इसको स्टडी करते हैं एपीमॉर्फिज्म में, क्योंकि ग्रुप्स तो इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रुप्स में आप कुछ देखना ही नहीं है, ग्रुप्स में दोनों चीजें इक्वल है। अब सेमी ग्रुप्स में आपको देखना कौन सा सेमी ग्रुप ऐसा है एस जिस पर जो भी एपीमॉर्फिज्म आप लोगे वो सर्जेक्टिव मॉर्फिज्म होगी। ऐसा कौन सा सेमी ग्रुप है? ऐसे कौन से ऐसे सेमी ग्रुप्स है? हर किसी सेमी ग्रुप के लिए ट्रू नहीं है, हर कोई एपी सर्जेक्टिव नहीं है हर किसी सेमी ग्रुप पर। बट अब आपको ये देखना, अब आपको ये वो सेमी ग्रुप स्टडी करने हैं जहां पर एपीमॉर्फिज्म सर्जेक्टिव मॉर्फिज्म है, जिस पर जब भी आप कोई एपीमॉर्फिज्म लोगे वो हमेशा सर्जेक्टिव। और इस पर बहुत सारी रिसर्च हो भी गई है और करंटली इस पर बहुत रिसर्च हो भी रही है। तो कुछ क्लास ऑफ सेमी ग्रुप्स को डिटरमाइन किया गया है जहां पर हर कोई एपी सर्जेक्टिव है। ओके, अब तो सबसे पहले हमने कहा कि एपीमॉर्फिज्म सर्जेक्टिव मॉर्फिज्म नहीं है, इसलिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं सेमी ग्रुप्स को। और इसके लिए कोई एग्जांपल तो आपको मिलनी चाहिए ना, कोई एपीमॉर्फिज्म आपके पास होनी चाहिए जो सर्जेक्टिव मॉर्फिज्म ना हो, तब जाके कुछ बात बनती, तब जाके हमें देखने के कौन से सेमी ग्रुप्स ऐसे हैं जहां पर एपी सर्जेक्टिव है। क्योंकि जब पहले आपको कोई सेमी ग्रुप मिलना चाहिए ना जिस पर एपीमॉर्फिज्म सर्जेक्टिव मॉर्फिज्म ना हो, तो फिर आपको ये देखने कि वो कौन से सेमी ग्रुप्स है जहां पर एपीमॉर्फिज्म सर्जेक्टिव मॉर्फिज्म है। तो सबसे पहले वो एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल, epimorphism need not be surjective morphism, need not be surjective morphism in the category of semigroups.
in the category of semigroups. So APs are not surjective in general in the category of semigroups. Example, let's take this simple. Let u equal to the closed interval 0 1 and s equal to the real line, positive non-negative real line, b multiplicative semigroups. मतलब ऑपरेशन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, बी मल्टीप्लिकेटिव सेमीग्रुप्स है ये दोनों सेमीग्रुप्स विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. यस डिमशा सेमीग्रुप्स. हाँ, आप कोई भी दो नंबर्स लीजिए लाइंग बिटवीन 0 और 1, इनका प्रोडक्ट भी 0 और 1 के दरमियान ही होगा. सो इट्स क्लोज, द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज क्लोज है. तो एसोसिएटिव तो ट्रिवियली है ही. इसी तरह से इसमें भी आप देखते हो 0 to infinity में आप कोई भी दो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स लीजिए, उनका प्रोडक्ट भी नॉन नेगेटिव रियल नंबर ही होगा. सो बोथ आर सेमी ग्रुप्स विथ रेस्पेक्ट टू सेम ऑपरेशन एंड दिस यूजेस सब सेमी ग्रुप ऑफ. Then this u is a proper subsemigroup. It's a proper subsemigroup of S. यहाँ तक ठीक है? तो अब हम मैं u पर एक ऐसी मॉर्फिज्म डिफाइन करूंगा जो एपीमॉर्फिज्म होगी मगर सर्जेक्टिव मॉर्फिज्म नहीं होगी, जो सर्जेक्टिव नहीं होगी. क्या नहीं होगी? एपी तो होगी मगर सर्जेक्टिव नहीं होगी. सो लेट्स डिफाइन अल्फा ऑन यू टू दिस सेमी ग्रुप एस. ओके, एस कोई भी हो सकता है, डिफरेंट भी आप ले सकते हो, बट एग्जाम्पल के केस में क्योंकि आपको एक काउंटर एग्जाम्पल चाहिए, यू कैन चूज पर्टिकुलर. ओके, और जब आपको प्रूव करना है ना होगा, अगर आपको प्रूव करना होगा यू पर हर कोई एपीमॉर्फिज्म सर्जेक्टिव है, उस केस में आप एस को फिक्स नहीं कर सकते. यू कैन नॉट फिक्स एस. फिर आपको कोई भी मॉर्फिज्म लेनी है यू से लेकर इस सेमी ग्रुप यू से लेकर पर्टिकुलर सेमी ग्रुप यू से लेकर किसी भी सेमी ग्रुप एस पर. अगर आपको प्रूव करना होगा अल्फा एपी है, अगर आपको प्रूव करना होगा अल्फा इज एपी, उस केस में